वो फैसल पीरजादा साहब हैं जो कि सेक्रेटरी हैं जीबी टूरिज्म। Pakistan is one of the most blessed countries in the world. And wonderful things about GB is that out of 14 more than 8,000 meter peaks, there are 5 which are in Pakistan and all are in GB. And when adventure tourism comes in mind, GB comes in mind. हमारे डेस्टिनेशंस के बहुत बड़ा इशू सस्टेनेबिलिटी है। मैं इस प्लेटफॉर्म से अपनी यूथ को ये जरूर पैगाम दूंगा कि आप आपका न घर है, जिस तरह आप अपने घर की किसी ऐसे कोने में जाते होते हैं जो कि बहुत वल्नरेबल होता है, इसी तरह से आप सोचें कि जब आप जीबी में आ रहे हैं ना, तो आप एनवायरमेंटली इकोलॉजिकली एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया में आ रहे हैं। जब आप इन जगहों पे अपना कार्बन फुटप्रिंट लेके जाते हैं ना, तो आपने और हम सब ने बहुत ही सेंसिटिवली उसको डील करना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टूरिज्म इनसाइट्स पॉडकास्ट सीरीज। आज के हमारे जो इस वक्त के मेहमान हैं वो फैसल पीरजादा साहब हैं जो कि सेक्रेटरी हैं जीबी टूरिज्म। और फैसल साहब ने वैसे जीबी में बहुत टाइम गुजारा है। आई वुड लाइक टू फैसल साहब आस्क यू दैट यू हैव बीन इन जीबी एंड हाउ यू लुक एट द टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ जीबी एंड द challenges this area is facing right now. Thank you very much. First of all, thank you for inviting me here, and it's a good platform and opportunity to let you know about all the challenges and opportunities. As you know, Pakistan is one of the most blessed countries in the world, and I would say that in Pakistan, GB is one of the most blessed, regions of the Pakistan. It has got all the potentials to actually turn the Pakistan economically upside down also. Why I would say so? Because it's not only a tourism potential, it's mines, it's minerals, and there are the assets are basically the hospitable people, their cultures. So we so far have not seen the tourism as an industry. Basically, this has been the problem. We have seen it as kind of Sero Saya thing. So if we see it in the perspective of a tourism industry, we have got such potentials. One of the things which I can just enlist is that the features which make it the most attractive destinations of the world is that it's a confluence of 3 most wonderful mountain ranges of the world: Himalaya, Hindu Kush, Karakoram. They meet at one place in GB, and that is called Jaglot. It's near Gilgit. Had it been in any other part of the world, it would have been a very celebrated place. Secondly, it's the third pole of the world. Why I would say so? Because it's got more than 7,000 glaciers. There's only either North Pole or the South Pole, which has got so many glaciers together. And third, one of the most wonderful things about GB is that out of 14 more than 8,000 meter peaks, there are 5 which are in Pakistan and all are in GB. 4 of them are in district Shigar: K2, Dashapuram 1, Dashapuram 2, Broad Peak, and one that is called Killer Mountain is called Nanga Parbat. That is in near Chilas, Nandyamir district. So that makes it one of the most wonderful destination for especially those people who are interested in adventure tourism. And when the adventure tourism comes in mind, GB comes in mind. Mountaineering, trekking, paragliding, and skis. We have got ski resorts in Ratu, and there are potential other ski resorts if we go with the public-private partnership things and collaborations thing. And the most wonderful thing is hospitable people. They are very, very, hospitable. They treat guests just like their own family members. And you must have seen in different vlogs and the foreigners coming to Pakistan, especially this region of Pakistan, the Gilgistan, they feel at home, they feel secure. And that is one of the most prominent things. साहब आपने बड़े अच्छे तरीके से इसका जो है ना वो एक कहना चाहिए पिक्चर लोगों के सामने रखी है जिसके पोटेंशियल की। मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि टूरिज्म ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन पॉलिसी। क्या आपको लगता है क्या पॉलिसी रिफॉर्म जीबी में इस वक्त रिक्वायर्ड है एज अ सेक्रेटरी, और एक आपने लॉन्ग टाइम वहां गुजारा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में,
कि वो पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाए सो दैट वी आर एबल टू हार्नेस दिस पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल इस वक्त जीबी का है? थैंक यू वेरी मच जी, ये बड़ा पर्टिनेंट और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। पहले पहले तो जैसे मैंने कहा ना कि इसको रूटीन बिजनेस नहीं बल्कि हमें एक इंडस्ट्री के तौर पे लेना होगा। दूसरा, जरूरी है कि चीजें अनलर्न करके हमें सर्टेन चीजें रीलर्न करनी होंगी। फॉर गवर्नमेंट सेक्टर एक लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल द वर्ल्ड हम ये चीज देख चुके हैं बाय ट्रायल एंड एरर मेथड्स के, एक्सेप्ट फॉर वेरी एसेंशियल सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विस रेगुलेट करने में ज्यादा बेहतर रहती है रादर देन सर्विस प्रोवाइड करने में। ठीक है, उसमें कॉम्पिटिशन चाहिए, उसमें फंक्शनल स्पेशलाइजेशन चाहिए, उसमें कोलैबोरेशन चाहिए, उसमें बिजनेस टू बिजनेस मॉडल्स होते हैं। नो डाउट अबाउट इट के बिजनेसमैन या बिजनेस एंटिटीज एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं दे आल्सो मीन प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट कोई बुरी बात नहीं है। प्रॉफिट एक अच्छी बात बन जाती है जब आप उसको रेगुलेट करते हैं, क्योंकि वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इफ दैट इज वैल्यू फॉर मनी, दैट इज गुड फॉर ओवरऑल पब्लिक, फॉर यूथ, बिकॉज हमारे यहाँ यूथ बल्ज बहुत ज्यादा है। हाँ, और उसके लिए गवर्नमेंट को स्पेस देना होती है एक, और उसको एक ऐसा माहौल बनाना होता है कि हमारे यहाँ बिजनेसेस जो है ना फ्लोरिश करें। इसी तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री में हम सिर्फ समझते हैं कि टूरिज्म एक किस्म की होती है। टूरिज्म इस वक्त दुनिया की कल्चरल टूरिज्म से लेके रिलीजियस टूरिज्म से लेके हेल्थ टूरिज्म, हमारे यहाँ जिस तरह की हेल्थ सर्विसेज मुहैया है दुनिया में बहुत सारी, मैं जीबी की बात सिर्फ नहीं कर रहा, मैं इस वक्त फॉर एग्जांपल अब कराची में बैठे हैं, कराची में जबरदस्त किस्म की आपकी जो है ना हेल्थ सर्विसेज मौजूद है। आप गंबट चले जाएं यहाँ से, वहां पे एक अमेरिकन खातून ने जिगर की पेवंदकारी कराई 10,000 रुपए में। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जो कि हम प्रमोट करते हैं इंटरनेशनली, तो हमारे लिए वो भी जो आता है वो एक टूरिस्ट ही आता है, वो यहाँ पे खर्च करता है, यहाँ के माहौल को देखता है। तीसरा जो बहुत बड़ा गवर्नमेंट की इस पे होता है ना, गवर्नमेंट के हवाले से सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। इस वक्त का माहौल जब हम बहुत ज्यादा क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी में आए हुए हैं, पाकिस्तान क्लाइमेटिकली इस वक्त दुनिया में 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। वो इस वजह से नहीं है कि हम कोई दुनिया में ज्यादा गंद फैलाते हैं। दुनिया में जो दूसरे बड़े इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने अरबों खरबों डॉलर्स कमाए हैं ऐसे, उन्होंने ये सारा माहौल क्रिएट किया है ग्रीन हाउस गैसेस वाला, ग्लोबल वार्मिंग का, जिसके हम इफेक्टिव हैं, नेगेटिव इफेक्टिव। तो लॉजिकली तो हमें उनको कंपनसेट करना चाहिए और हमारी मदद को आना चाहिए इस हवाले से। लेकिन खैर हमारी रिजिलियंस इस मामले में दो होती हैं, वो एडेप्टेबिलिटी होती है कि हम जो चेंजिंग है एग्रीकल्चर से लेकर हर चीज में अडॉप्ट करें। खैर दूसरा है कि हम उसके कोप किस तरह से करते हैं मैकेनिज्म्स को। पिछले 2 सालों में हमने देखा टूरिज्म हमारी साइड का, खास तौर से जीपी का, हर्ट हुआ है इस हवाले से बहुत ज्यादा, और हम उसी वजह से तकोदो कर रहे हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में। दूसरा जो वहां पे कनेक्टिविटी सिर्फ रोड्स के हवाले से नहीं, वाईफाई कनेक्टिविटीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस रीजन में वाईफाई कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है, जिसमें हम गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला इस साल का हमने उस टारगेट भी रखा हुआ है कि उसको इंशाल्लाह और बेहतर करेंगे। और फ्लाइट कनेक्टिविटी या रोड कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना जरूरी है, क्योंकि जो लोग इंटरनेशनली खास तौर से आते हैं उनका एक एक दिन शेड्यूल्ड होता है, और वो शेड्यूल उनका खराब होता है तो वो उनका दिल भी खराब होता है कि यार हम जो है ना ऐसी डेस्टिनेशंस पे क्यों जाएं जहां वो बड़े प्लान्ड किस्म के लोग होते हैं। इस वजह से तो हमें गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर देना बहुत जरूरी है, और कोलैबोरेशन विद प्राइवेट सेक्टर हर सेक्टर में बड़ा जरूरी है। नए जो वहाँ पोटेंशियल्स अवेलेबल हैं, उसमें रिवर राफ्टिंग है, उसमें स्की रिजॉर्ट्स बनाने हैं, या पैराग्लाइडिंग है, या हेलीकॉप्टर टूरिस्ट सर्विसेज है, इस पे काम चल रहा है। गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस ऑन दैट, और इंशाल्लाह ताला हम इसी साल में, साल 2 में बहुत अच्छी चेंजेस भी देखेंगे, और लॉन्ग टर्म में तो हमारे बहुत अच्छे जबरदस्त किस्म के गोल्स हैं इस हवाले से। आपने सर 2 चीजों को बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनको टच किया है, एक सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो इम्पैक्ट है वहां पे बहुत बड़ा, और दूसरा आपने कनेक्टिविटी की बात की। मेरा क्वेश्चन ये है कि देखें, किसी भी मुल्क की जो लोकल टूरिज्म है वो उसकी बैकबोन होती है। कैसे एज अ गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ये इंश्योर कर सकती है कि ईयर राउंड ये डेस्टिनेशंस लोगों को अवेलेबल हों, लोग इसमें ट्रैवल कर सकें? क्योंकि इस वक्त का जैसे आजकल के दिनों में आपके पास चेरी ब्लॉसम का सीजन है, लोग जापान जाते हैं, इतने दूर दूर जाते हैं इसको देखने के लिए, एंड यू हैव गॉट बेस्ट पोटेंशियल
and one of the best time to visit GB. तो आप ये जो नेटवर्क है इसको आप कैसे देखते हैं इस वक्त, और there is a lot of improvement required because traveling is a big hassle right now. यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं चीजों को। हमारे यहाँ साल में तकरीबन 1 बिलियन लोकल टूरिस्ट आता है और जीबी की आबादी 1.7 मिलियन है, ठीक है। तो तकरीबन हमारी आबादी से 50% से ज्यादा जो है ना टूरिस्ट आते हैं वहां पे। वी ऑलवेज वेलकम देम। लेकिन टूरिज्म को जो हमारी नई जनरेशन है ना, जो यूथ बल्ज है, बेसिकली उसको टारगेट करना, और वो फोरम्स जहां मैं जैसे आपके फोरम पे बैठा हूँ, सोशल मीडिया उनका हथियार भी है और उनकी जो है ना पहचान भी उसी से है, उसी को फॉलो भी करते होते हैं, देखते होते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा जो एंगेज करना है वो यूथ को करना है। और यूथ में एक होता है हमारा कन्वेंशनल टूरिज्म, कन्वेंशनल आया, कोई गिलगित गया, गिलगित से हुंजा गया, 10 चीजें देखी, फिर वापस चले गए। दूसरा हमारा जो रियल टूरिज्म प्रॉपर है ना, वो है माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग, रिवर राफ्टिंग, ठीक है। ये यूथ कर सकती है। बच्चे लेके, वो जो लोग ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे लेके आ रहे होते हैं अधेड़ उम्र में, उसमें दे आर मोस्ट वेलकम। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनको टूरिज्म की नई माना और प्रैक्टिस कराना, और उसका कैसे हो सकता है, बहुत खास तौर से जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है ना, वो जो इस वक्त हम टारगेट कर रहे हैं वो भी यही है कि बहुत बेहतरीन किस्म के इंस्टीट्यूट जो है ना, जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे हाई एंड इंस्टीट्यूट जो है, वहां पे वो लोग अवेलेबल होते हैं जो पेइंग कैपेसिटी भी रखते हैं, और उनको, उन बच्चों को हम 8वीं क्लास से लेके 10वीं 12वीं यूनिवर्सिटी, इस लेवल पे हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज में एंगेज करते आए, ताकि उनका वो पूरा मोड बनता है टूरिज्म का। टूरिज्म वन नाइट इसमें आ नहीं सकता। आप और आपके हमारे जमाने का टूरिज्म सैरो सेहत वाला अलग था, अब थोड़ा सा बिल्कुल अलग हो गया है, और उसको इम्बाइब कराना जो है ना, वो जरूरी है यूथ में, क्योंकि हमारी 60% अब यूथ बल जो हुआ है। दूसरा जो है हमारा, वो है हाई एंड टूरिस्ट। हम अगर ये समझते हैं कि लोकल टूरिस्ट जो है ना वो हमारे लिए सब कुछ करेगा, तो आई अपोज दैट। हाई एंड टूरिस्ट ऑफ यूरोप, ऑफ अदर कंट्रीज, ऑफ चाइना, हमारी जो दूसरी कंट्रीज हैं, जो उनके लिए सबसे बड़ी 2 चीजें होती हैं। एक कि हम जो शेड्यूल बनाएं वो इम्प्लीमेंट हो रहा हो, मकसद टाइमली कनेक्टिविटी हो, फ्लाइट्स जाएं और हम सेफ हो। दूसरा होता है सेफ्टी। तीसरा होता है डेस्टिनेशन, जो एज पाकिस्तान है ना, उसकी ओवरऑल इमेज। हमें इंटरनेशनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी इमेज को काफी बेहतर बनाया है, लेकिन अब उसको दूसरी लेवल पे ले जाने की जरूरत है। तीसरा है हम अपने खेलों से, जो वहां पे खेल खेले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आइस हॉकी है, उसकी लड़कियों की टीमें भी हैं, लड़कों की टीमें भी हैं, ये आपकी एक सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करता है। आपका पोलो है, फ्री स्टाइल पोलो, वो दुनिया में बहुत कम जगहों पे फ्री स्टाइल अब खेला जाता है। वो हमारे शंदूर पोलो है, मुख्तलिफ ऐसे इवेंट्स हैं जो कि आपके इमेज को कैरी करते होते हैं। हमारे यहाँ नायला कियानी साहिबा है फॉर एग्जाम्पल, या 3 खवातीन ने बहुत हमारी K2 और मुख्तलिफ चोटियां सर की हुई हैं। ये सारे जो है ये हमारे एम्बेसडर्स हैं। इनको कैश करना जरूरी है कि वो पाकिस्तान को सॉफ्ट इमेज को और ज्यादा प्रमोट करें, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में जाएं और वहां पे खवातीन को, बच्चों को, लड़कों को, सबको वो एक किस्म का अपना एक्सपीरियंस बताएं। हमारे लोग बच्चे ये समझते हैं कि ये हमारे लिए नहीं, अंग्रेजों के लिए चीज बनी हुई है। ऐसा नहीं है, ये हमारे बच्चों के लिए भी है, सिर्फ उनको वो उसमें एंगेज करना जरूरी है, ठीक है ना। तो इससे हमारा इंशाल्लाह टूरिज्म। दूसरा ये बहुत जरूरी जो चीज है वो ये है कि वहाँ कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वगैरह नहीं है। जो पावर सेक्टर है, बिजली की अदम दस्तयाबी जो है ना, वो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ऑफ ग्रिड है पाकिस्तान के। वहां पे जो लोकल पानी से बिजली बनती है, झरनों में हम लगाते हैं अपना टरबाइंस लगाते हैं, वहां से 1 मेगावाट 2 मेगावाट 5 मेगावाट इस तरह की बिजली होती है। लेकिन सर्दियों में चूंकि वो बहुत कम हो जाता है पानी, तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रेजेंट रिजीम ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छी हमें जो है ना वहाँ पे 100 मेगावाट सोलर का तोहफा दिया है। लोग उससे भी मुस्तफीद हो रहे हैं। प्राइवेटली भी वो सोलर को काफी इस वक्त पजीराई मिल रही है। इसी तरह हम सोलर के अलावा दूसरी जो विंड एनर्जी वगैरह, इसको करके पावर सेक्टर को इम्प्रूव होना जरूरी है, क्योंकि उससे जुड़ी सारी चीजें हैं। पावर हमारा सेक्टर आ जाएगा वहां पे, तो उसके साथ वाईफाई नेटवर्क्स भी बेहतर हो जाएंगे, हमारे इंडस्ट्रीज लगना भी शुरू हो जाएंगी, लोग भी आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा है हमारा बॉर्डर है चाइना के साथ। तो चाइना का बॉर्डर, अगर हम जिस तरह से हम चाइना जा रहे होते हैं, तो चाइनीज अगर हुंजा गिलगित वाली साइड पे फ्रीली मूव करेंगे
और उनको वहां से पासेस मिलेंगे, जिस तरह से हम यहाँ से पासेस देके लोकल्स को भेजते हैं, तो वो एकदम से टूरिज्म बढ़ जाएगा। ये एक बहुत जो इंटरनेशनल टूरिज्म से पाकिस्तान की इमेज जाती है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, और जितने भी लिंक्ड है वो बजीरा ही पाते हैं। ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला हमारा इस पे ही फोकस ज्यादा है। आपने टूरिज्म प्रोडक्ट की बड़ी अच्छी बात की। हमारा वहाँ पे क्योंकि जो माउंटेनियरिंग है, जो एडवेंचर टूरिज्म है, इसका तो बड़ा स्कोप है। दो प्रोडक्ट ऐसी मुझे नजर आ रही हैं कि जिसके ऊपर जीबी में काम होना चाहिए, कुछ हो भी रहा है, जिसमें एक वेलनेस एरिया है कि वेलनेस टूरिज्म, कुछ ऐसे रिजॉर्ट्स बने हैं अभी जीबी में कि जो वेलनेस को प्रमोट कर रहे हैं। एक ये है, दूसरा जो एग्री टूरिज्म है, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे फार्म्स हैं। कैसे हम इन फॉर्म्स को बेसिकली, गवर्नमेंट का कोई प्लान है कि इस तरह एक इकोसिस्टम बनाए कि लोग एग्री टूरिज्म के लिए उस सीजन में उस फॉर्म पे जाके रहें, जो कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी मार्केट है एग्री टूरिज्म की। तो एग्री टूरिज्म और वेलनेस टूरिज्म का मैं समझता हूँ कि जीबी के अंदर बहुत पोटेंशियल है, और ये दोनों ऐसी ऐसी ऐसे एरियाज हैं कि जो आपको 1 2 3 नाइट से ज्यादा का स्टे एक्चुअली मांगते हैं, और ये वो वाला पोटेंशियल टूरिस्ट है जो ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। somebody could be spending 15 days on a farm कि यार मैंने इस पे रहना है, उन एक्टिविटीज में रोजाना इन्वॉल्व होना है, और फिर उसमें उन लोगों के साथ काम करना है, कल्चर को अंडरस्टैंड करना है। तो आप क्या समझते हैं कि वेलनेस और एग्री टूरिज्म पे जीबी में कोई ऐसी आप देखते हैं कि काम हो रहा है, या आप इसको कोई अपना एजेंडा बना के इनिशिएटिव आप इस पे चाहेंगे कि कोई लिया जाए? थैंक यू वेरी मच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वेलनेस के हवाले से हम क्यों जीबी की बात कर रहे होते हैं, एक तो वहां पे जो आब हवा है, पानी है, वो उस तरह से पोल्यूटेड नहीं है। ठीक है ना, तो इटसेल्फ वो पहले ही आपको फर्स्ट बूस्ट मिलता है जब आप ताजे ताजी खुबानियां, ताजे जो है ना चेरीज खाते हैं, और आप खुद तोड़ के खा रहे होते हैं, नीला आसमान देखने को मिलता है, और जबरदस्त किस्म की हवा मिलती है। लेकिन उसके अलावा जो है ना, वहां पे ऐसी जड़ी बूटियां भी हैं जो पे हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है ना, वो मैं समझता हूँ उसमें हमेशा से इंटरेस्टेड रही है। उसमें हमारे बहुत सारे लोग उसको गवर्नमेंट के मावरा चैनल से भी ले जाते हैं। लेकिन अस्तोर डिस्ट्रिक्ट खासतौर से, और जीबी इन जनरल, हमें, मैं आपको 2 3 एग्जांपल्स देता हूँ। एक छोटी सी बेरी है वहां पे, सीबक थॉर्न जिसे कहते हैं। सीबक थॉर्न एक आम हुंजा में और गिलगित में आम अवेलेबल होती है, हर जगह पे शराब की तरह होती है। लेकिन उसके जब टेस्ट करवाए गए मुख्तलिफ खासतौर से, तो उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी कैंसरस एलिमेंट्स हैं, वो इस तरह के हैं कि मतलब कहे कि आपके सेहत पे बेहतरीन असर आते हैं। इसी तरह से आपकी जंगली थोम होती है, जंगली आपके पुदीना होता है, जिसके फवायद अनगिनत होते हैं। और बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपकी ब्लड प्रेशर, शुगर से लेके मुख्तलिफ आपके सेहत पे असरअंदाज होती हैं। अच्छा, इस हवाले से मैं नहीं कहता इस वक्त के कोई बहुत बड़ी स्टडीज हो चुकी हैं, या इस तरह के कोई इसमें बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। क्या उसकी लेबोरेटरी टेस्टिंग स्टडीज के बाद उनके वेलनेस सेंटर्स प्रॉपर खुलने चाहिए, जो लोग वहां पे देखें, आए कि ये कराएं। अच्छा, आपके अखरोट वहाँ लोकल होता है, उसके ऑयल्स हैं, बादाम के ऑयल्स हैं, उसकी मुख्तलिफ अकसाम है। तो ये वेलनेस को बड़ा प्रमोट कर रहे होते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसमें बड़ा पोटेंशियल है। एग्रीकल्चर वाइज साइड पे मैं ये जरूर कहूंगा कि कोलैबोरेशंस की जरूरत है, क्योंकि हाई एंड फ्रूट, हाई एंड वेजिटेबल जो कि यूरोपियन कंट्रीज में उन इलाकों में होते हैं जो कि यहाँ इंपोर्ट किए जाते हैं, हम अपने इंपोर्ट बिल्स भी कम करें, और वो ही एटमॉस्फेयर यहाँ अवेलेबल है। उसके लिए एग्रीकल्चरल, खासतौर से जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज है हमारी, उन्होंने कुछ हमारी रिसर्चेस की भी हैं, लेकिन और करनी जरूरी है कि कौन से ऐसे हाई एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो कि यहाँ पे आराम से हो सकते हैं, उगाए जा सकते हैं। उस पे फिर कम्युनिटीज जो है वहां पे उनके साथ कोलैबोरेशन करके फार्मिंग उसकी की जाए, और हम यहाँ से फिर एक्सपोर्ट्स करें रादर देन इंपोर्टिंग देम। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक टर्न अराउंड भी होगा इंशाल्लाह ताला। इस पे काम करने की जरूरत है, इंशाल्लाह आई विल टेक अप ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच। वन लास्ट थिंग जी, क्विक, आप यूथ को, चूंकि जो अक्सर हम व्लॉग्स देखते हैं, वहां के लोगों के कंसर्न्स को सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट, दे आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब द सिस्टम। तो आप ओवरऑल यंगर जनरेशन जो कि ट्रैवलिंग में सबसे बड़ा नंबर है जिनका, कोई एक पैगाम देना चाहें कि यार वंस यू आर व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, तो प्लीज इन चीजों का ख्याल रखें ताकि डेस्टिनेशन को प्रिजर्व किया जा सके आने वाली जनरेशन के लिए, बजाय इसके कि हम उसको ओवर टूरिज्म से डेस्टिनेशन को डिस्ट्रॉय कर दें। जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस क्वेश्चन पे, क्योंकि मैं सेक्रेटरी इन्वायरमेंट भी काम कर चुका हूँ वहां पे।
हमारे डेस्टिनेशंस के बहुत बड़ा इशू सस्टेनेबिलिटी है। मैं इस प्लेटफॉर्म से अपनी यूथ को ये जरूर पैगाम दूंगा कि आप आपका न घर है, जिस तरह आप अपने घर की किसी ऐसे कोने में जाते होते हैं जो कि बहुत वल्नरेबल होता है, जहां पे कदम आराम से रखना होता है और टूट फूट का शिकार ना हो जाए, इस तरह से करना है। इसी तरह से आप सोचें कि जब आप जीबी में आ रहे हैं ना, तो आप एनवायरमेंटली, इकोलॉजिकली एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया में आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे कोई 7 के करीब प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, 7,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं, जो कि दुनिया में और कहीं नहीं है सवाए नॉर्थ पोल और साउथ पोल के। जब आप इन जगहों पे अपना कार्बन फुटप्रिंट लेके जाते हैं ना, तो आपने और हम सब ने बहुत ही सेंसिटिवली उसको डील करना है। अगर हम अपनी प्लास्टिक बोतलें ले जाएं तो वहां ना फेंकें, पॉलिथीन बैग्स ले जाएं या पैम्पर्स वगैरह ले जाएं तो उसकी वहां पे डंपिंग थ्रो डाउन कर देते हैं पहाड़ों से नीचे, और वो अल्टीमेटली जो है ना हमारे इकोलॉजी को खराब कर रहा होता है लॉन्ग टर्म में। दूसरा, वहां वहां जीप्स और वो चीजें चली जाती हैं जहां नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना। हालांकि रोड, कहीं कहीं रोड ना बनाने का मकसद ये होता है कि आप ठहर जाएं और वहां पे और फिर वहां से पैदल का मजा लें उसका, ठीक है ना। मैं एक और अपनी यूथ को कहूंगा कि कन्वेंशनल टूरिज्म बहुत अच्छी बात है हमारी, लेकिन जो एडवेंचर टूरिज्म है ना, उसको अडॉप्ट करें। ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। और इसका जो मजा है, इसका सेहत पे जो मजा है, इसका जो आपको थ्रिल मिलता है, जो एड्रेनलिन रश मिलता है, वो किसी और चीज में आपको नहीं मिलेगा कि आप सिर्फ गाड़ी में बैठ के कोई चीजें देख रहे हो। यूथ इसके लिए प्रिपेयर हो जाए और प्रिपेयर रहे, हम उनको इंशाल्लाह ताला पूरे मदद फरमाएंगे इंशाल्लाह ताला। फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आपने स्पेयर किया और जीबी के हवाले से जो है वो उन कोर एरियाज को हाईलाइट किया और अपॉर्चुनिटीज को भी बताया कि जो हमारे लोगों के पास है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच जी।